If for any reason you think I am going to go into the college and my life would be like those Bollywood style movies, no, it won't be. Let me burst the bubble. 75% of the times you are going to cry over the attendance, over the toxic people, over the type of college you have got into. Why did you get into this college? और कितनी अच्छी चीजें हो सकती थी करने के लिए लाइफ में, यही मनहूस कॉलेज मुझे क्यों मिला है, ऐसे मनहूस लोग मेरे आसपास क्यों हैं, एंड सो मेनी सिमिलर थॉट्स. बट इफ यू नो पहले से कि these might be the things which will be happening with me, people those who are just about to get into their college या फिर शायद उन्होंने college recently join किया हो, they will have to face the problems. Obviously मेरे एक वीडियो बनाने से तुम्हारे problems नहीं खत्म हो जाएंगे, but you will get a way to deal through those without any hassles और दिमाग बिना खराब किए, because you know कि भाई ये चीज तो होने वाली थी, मुझे पता था, but now you need to deal in this manner with it. I तो am regretting that why I didn't have any दीदी भैया या any baddie or anyone, कोई तो रह लेता जो मुझे बताता कि college join करने के पहले these things are going to be there and you need to be aware of those. So bear with me till the last. Bear with me. मैं अच्छा बता रही हूँ भाई, bear करने की जरूरत नहीं है. Let's get into the video. Starting with the first and most important thing, know the vibe of your college. I know सबके लिए possible नहीं है कि जानना हमारा college कैसा होगा, because everyone might not have a senior or a neighbor or a teacher or a friend or anyone who knows the specific details about that particular college. But if possible, get to know the minute details about the college. How are the fests over there? What kind of people join that college? Because the campus energy really affects your college experience. So try not to walk in blind if possible. Secondly, yes, I know attendance is boring. The curriculum might seem to be boring, but we don't have an option. At least be loyal to attendance. Yes, I am in a complete favor of bunking and enjoying. जरूरी नहीं है कि आप lectures attend करो. Lectures में वैसे भी कुछ समझने आने वाला है नहीं. But college जाना is important. Don't take me as a bad influence. ये तो हमें गलत चीजें बता रही है. No, I am not. 75% criteria is important so that end में you are safe. तुम्हें तुम्हारे सर पे बंदूक रख के कोई बोल ना पाए कि तूने तो कॉलेज अटेंड नहीं किया था ना, अब तुम्हारा रिजल्ट विथहेल्ड हो जाएगा, अब तुम्हें हम एग्जाम नहीं देने देंगे, अब तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा. Just to avoid all the repercussions, it's important that you maintain at least 75 से थोड़ा बहुत अगर मिलता जुलता भी रहा तो कॉलेज वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं. Whichever curriculum you have gotten into, try to take it seriously. Be aware of क्या हो रहा है. मैं जब अपने कॉलेज में थी, मैं क्या ठीक है, मैं तो अभी कॉलेज में ही हूँ. जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, सेकंड ईयर में मैंने जब एंटर भी किया था, तब भी I didn't even know which subjects we had to study. I was so nonchalant और मैं एक तरीके से ऐसी हो गई थी, अब तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगी. मैंने बहुत मेहनत की थी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मुझे फिर भी जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो अब तो मैं पढ़ाई ही नहीं करूंगी. प्लीज डोंट बी लाइक मी. अपना थोड़ा दिमाग यूज करना, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई से अपना टच रखना इज इम्पोर्टेंट. The boring part is done. This was all about the boring cheeze, attendance and all. Now we are actually coming to the juiciest part about the friendships, about the relationships, and what is the actual college life about. I agree, you will be getting into a college, but more than a college, it is going to be Amazon jungle. क्योंकि यहाँ पे आपको सब तरीके के जानवर मिल जाएंगे. सबसे कॉमन जानवर जो हर कॉलेज में होता है, I mean हर जंगल में होते हैं, they are सांप. और अलग अलग प्रजाति के सांप मिलेंगे. You will never know ये कब आपको आके ढस लेंगे. Obviously you cannot be aware of them just at the first impression कि अरे ये तो मेरे से अच्छे से बात करी, ये सांप नहीं हो सकती. नहीं, सबसे बड़ी सांप वही निकलेगी जो अभी इतने अच्छे से बात कर रही है. सो बी केयरफुल विद योर कॉन्वर्सेशंस. प्लीज डू नॉट ओवर शेयर, बिकॉज यू डोंट नो कौन कोई चीज किस तरीके से यूज कर लेगा आगे जाके. यू विल फाइंड गुड फ्रेंड्स, आई अग्री, बट मोर देन दैट यू विल फाइंड गुड स्नेक्स ऑल्सो. धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल कम टू नो कि कौन ऐसा इंसान है यार, ये एकदम जिगरी है, इसको तो मुझे सब बताना है, इसको तो मेरे को रखना है अपने साथ. पीपल विल बी सेल्फिश, पीपल विल नॉट ऑलवेज विश गुड फॉर यू, पीपल विल जज यू फ्रॉम बिहाइंड. यू विल नॉट नो, वो तुम्हारे साथ ही अच्छे रहेंगे एंड देन तुझे पता है इसने ऐसा किया. प्लीज यू नीड टू बी वेरी वाइज विथ योर डिसीजन कि मुझे कौन सी चीजें बतानी है, कौन सी नहीं बतानी है, किससे बात करना है, किससे थोड़ा सा दूर रखना है कि भाई मुझे लगा था तू अच्छा है बट तू तो अच्छा नहीं है या अच्छी नहीं है, वॉट एवर इट इज. फोर्थ थिंग, आई थिंक मुझे ये चीज किसी ने पहले बतानी चाहिए थी, दैट यू नीड टू बी गुड टू योर सीनियर्स. आई नो देयर आर सम सीनियर्स, दे विल बी लाइक थोड़े से अकड़ू टाइप, ए तूने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, तू होती कौन है ये करने वाली. येस, देयर विल बी दोस काइंड ऑफ पीपल, बट यू नीड टू फिल्टर देम आउट. ऑब्वियसली आपको हर किसी से फ्रेंडशिप करने की जरूरत नहीं, बट येस, seniors are a gold mine if you are good to them. Seniors are those जो तुम्हें help करेंगे, especially during your exams. They will literally make your college life more smooth. So be good to them. जबरदस्ती उनसे पंगे लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं तो cool हूँ, आजा. नहीं. Fifth, प्लीज बिल्ड अ पर्सनैलिटी ऑफ योर ओन. जस्ट डोंट बी दैट नर्डी पर्सन जो 24 घंटे सिर्फ बुक्स में घुसा रहता है कि मुझे तो टॉप करना है, मैं तो पढ़ाई करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, मुझे नाम रोशन करना है. नाम, पढ़ाई और बाकी चीजों को मैनेज करके भी रोशन हो सकता है, तब रोशन ज्यादा बेटर होगा. आई एम नॉट सेइंग टू बिकम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, नो, बट अदर देन दैट ट्राई टू बिल्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स. इफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू कंटेंट क्रिएशन, स्टार्ट दैट. इफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू सम अदर स्किल लाइक डांसिंग, सिंगिंग, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, गेट इनटू दैट. द मोर स्किल्स यू डेवलप, द मोर वैल्यूएबल पर्सन यू बिकम. सो
Focus more on this aspect. And this point is very important. Please learn AI. Try to invest your time and money into those places where you can learn AI so that you have an edge over the others. सबसे पहले तो it will make your studies एकदम मक्खन जैसा. Try to inculcate AI and all those tools into your daily life so that life becomes easy because it is a need of future. Don't wait कि भाई कॉलेज खत्म होगा तब मैं ये करूंगी या करूंगा. No. Sixth one is to have a proper balance. Like yes, you need to study, you need to have skills, you need to do everything. बट मेंटेन अ बैलेंस. ऐसा नहीं है कि टाइम पास करते करते पूरा दिन बीत गया. आई एम लिटरली टेलिंग यू आई हैड नो बैलेंस. एक दिन में वैम्पायर डायरीज के 24 एपिसोड्स मैंने खत्म कर दिए थे बिकॉज मुझे पढ़ना तो था ही नहीं और कुछ तो करना ही नहीं है. तो घर पे बैठे बैठे क्या करना है, बस नेटफ्लिक्स जा रहे एंड कंप्लीटिंग ऑल द एपिसोड्स. वो मेरा टारगेट बन चुका था. That's crazy. I literally wasted so much of my time. I wasted my energy. वो टाइम मैं लिटरली कुछ और में दे देती शायद मैं कहीं और होती. If you know how to balance out things कि ये चीज को इतना टाइम देना है, ये चीज को ऐसे करना है, you will live a peaceful life. Trust me on this. I don't know why the next point I'm going to say people do not talk about this much is to document your college life. It is literally so underrated. मतलब it could be via journaling, it could be via recording videos, it could be anything. और जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज सोशल मीडिया पे अपलोड करना है. If you're not comfortable, it's fine. Now the reason for doing this is you will actually thank me later because firstly तो it makes memories. Secondly, it would actually help you monitor your growth. ऑब्वियसली जो इंसान फर्स्ट ईयर में जैसा होता है वो फाइनल ईयर में भी वैसा नहीं होता है. फर्स्ट ईयर में मेरा जो ड्रेसिंग सेंस था इट वाज बुलशिट. अभी भी कोई बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस नहीं है बट इट हैज इंप्रूव थोड़ा बहुत. आई नो दैट बिकॉज आई हैव वीडियोस फ्रॉम माय फर्स्ट ईयर. ऐसा नहीं कि मैं डॉक्यूमेंट कर रही थी इधर उधर किसी ने ले लिया था वीडियोस, तो वो वैसे वाले है वीडियोस. आई डोंट इवन वांट टू रिकॉल मैं क्या ही पहन के जाती थी. व्हेन यू डॉक्यूमेंट योर कॉलेज लाइफ इट बिकम्स वेरी फन. Try it on your own and you'll know what I'm saying. I'm such a talkative person कि हम 8th point पे आ गए, मुझे 8th point पे आ गए हैं. I didn't even realize that. Respect your health and hygiene equally. This is so crucial. People take this so lightly. Yes, you can go and enjoy in the parties. You can have the street food and everything. You can enjoy that. It's not just about the food. But don't be that person जिसको बस पड़ी नहीं है अपने हेल्थ की. They will do every single thing that will destroy their health. Please don't do that, especially if you are a person जो हॉस्टल में रहेगा. जैसे I am a localite, so I have a control. मेरे माँ बाप मेरे सर पे रहते हैं कि देख ऐसे नहीं करना है, वो नहीं भी रहते तो मेरे में खुद में अकल है. हॉस्टलाइट्स की टेंडेंसी होती है. They get into very bad habits. I have many people from my college जो हॉस्टल में रहते हैं. I know उनकी हरकतें क्या होती है. Please be accountable for your own self and don't try to fit in. अगर तुम्हें पता है कि मुझे ये चीज नहीं करनी, मुझे सिगरेट्स नहीं पीने हैं, so don't do that. You do not need to fit into that because it is actually going to ruin your life. If you know कि मुझे वो पर्सन नहीं रहना है जो आगे जाके लाइफ में निकोटिन की च्युइंगम चबाएगा, अपने आप को पहले ही एक्सक्लूड कर लो वहां से एंड बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स. एनीवेज मैं अपने पॉइंट से थोड़ा सा भटक गई. टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, एक्सरसाइजिंग, चाहे वो वर्कआउट हो, होम वर्कआउट हो, यू कैन वर्कआउट इन योर हॉस्टल इटसेल्फ, यू कैन जॉइन एनी जिम ताकि तुम अच्छा वर्कआउट कर पाओ. Anything, it could be walking, cycling, running, skipping, anything. But please don't be nonchalant for your health at least because if that is good, everything is good. And hygiene, इसके बारे में तो पूरी कथा लिख दूं तो भी कम है. Because hygiene, anything, चाहे वो तुम्हारा हेयर केयर हो, चाहे वो तुम्हारा स्किन केयर हो. भाई लोग नहाते नहीं है कॉलेज में, क्यों नहीं नहाते हो भाई? तुम बिना नहाए कैसे रह सकते हो? I can't even imagine myself not bathing for single day. You should be presentable to your own self. जरूरी नहीं किसी को दिखाना है कि भाई देख मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ. नहीं, be presentable, be good looking. खुद के लिए. स्किन केयर, भाई मुझे लगता था फेस कुछ अच्छे से कर लिया, मुंह धो लिया, हो गया स्किन केयर. नहीं, आई हैड सच अ बैड स्किन. लाइक इतनी खराब स्किन थी मेरी फर्स्ट ईयर में और उसके पहले बिकॉज आई जस्ट यूज्ड टू वॉश माई फेस, वो भी विद द सोप. हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता. क्या ही कर रही थी मैं. फॉर स्किन केयर एटलीस्ट हैव अ प्रॉपर फेस वॉश, एटलीस्ट हैव अ सनस्क्रीन, अ मॉइस्चराइजर, दैट्स इनफ. बट फॉलो इट, भाई फॉलो तो करो उसको. हाइजीन पे मैं बहुत बड़बड़ कर सकती हूँ बट वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी. सो लेट्स गेट टू आवर 9th पॉइंट, दैट इज बी ऑब्जर्वेंट एंड कम्युनिकेट विद पीपल. आई नो बहुत से लोग होते हैं, दे आर इंट्रोवर्ट, दे डू नॉट लाइक टू टॉक टू पीपल, बट इफ यू आर कम्युनिकेटिंग, इफ यू आर ऑब्जर्वेंट, you get to know the aspects of so many people. Networking is so important. Make connections with new people, get to know them because जब आपके connections होते हैं, you actually grow as a person. Try to be with those people who are ambitious. Try to get into as many extracurricular activities as you can. I am just college में, उधर तो इतना extracurriculars कुछ होता नहीं है, हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है. तुम यहाँ जाओ, वहाँ करो, ये करो, वो करो. But if your college actually offers the societies and clubs जो हर college में होते हैं, please be a part of them. Try to enhance your skills and college life में explore करने से better there is going to be no other age जहाँ पे तुम explore कर पाओगे. आगे जाके you might regret कि यार तब कर लिया होता. So don't do that. Explore as many things as you want to this time में. And yes, toxic people will exist. You need to know how to handle them maturely.
हर जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. हाँ, यू कैन पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट जरूरी नहीं है कि हर कोई इसे समझेगा. आई नो इतने लोग होते हैं उन्हें आग लगाने में बहुत मजा आती है. मतलब देयर आर सम पीपल ना दोज हु हैव अ हैबिट कि हर जगह हम हमारी टांग अड़ाएंगे. प्लीज बी अवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल. उनके मुंह लगकर कोई सेंस नहीं है. बी द मैच्योर वन. आई सेड दैट इट इज अ जंगल, तो इस जंगल में भैंस भी है, तो हर भैंस के आगे बीन बजा के इट मेक्स नो सेंस. लास्टली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी पीपल माइंड फील कि यार ये कौन से कोर्स में आ गई, मुझे तो ये करना ही नहीं है. आई डिडंट वांट टू डू इट, और मे बी यू वांटेड टू डू दैट, बट आफ्टर गेटिंग थ्रू दैट कोर्स एंड आफ्टर गेटिंग थ्रू ऑल द थिंग्स, इफ योर इंटरेस्ट इवॉल्व, दैट्स कंप्लीटली फाइन. यू विल हैव टू वर्क आउट योर वेज कि यार अब मुझे ये चीज नहीं करनी है. नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन टू समथिंग एल्स. इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सोल्यूशन. सो डोंट बी अफ्रेड कि यार मुझे चीज अच्छी नहीं लग रही है, मुझे चेंज करना है, तो कैन आई डू दैट. डू नॉट हेजिटेट. एटलीस्ट ट्राई टू टॉक टू योर पेरेंट्स इफ योर पेरेंट्स आर ओपन टू दैट. अदरवाइज तुम्हें खुद के तिकड़म निकालने पड़ेंगे चीजों को सॉर्ट करने के. एंड नॉट जस्ट द लास्ट वन, देयर आर सो मेनी थिंग्स. आई कैन जस्ट कीप ऑन सेइंग लास्ट, but yes, this is the last one. Just be aware of your finances. Try to be in those type of groups जो आपके पैसे सक नहीं कर लेते हो. They are not like कि भाई चल इधर चलते हैं, चल रेडिसन में चलते हैं पार्टी करने के लिए. No, if you don't have that money, straight away deny. Learn to say no whenever you are feeling कि यार ये चीजें तो बाहर है औकात के, ये नहीं करनी है. And if you are guilty about something, मेरे पास ये सब चीजें करने के लिए enough funds क्यों नहीं है, instead of fighting with your parents कि भाई मुझे और पैसा दो, try to make your own money. I am not the best person जो आपको बता पाए कि पैसे कैसे कमाते हैं. I want to end this with a note that do not compare your college journey with someone else's, क्योंकि हर किसी के पास एक अलग कॉलेज जर्नी है and I don't think कोई भी अपने कॉलेज जर्नी से खुश होता है. Instagram पे पिक्चर्स एंड वीडियोस शेयर करने में बहुत मजा आता है, बट reality is different for everyone. Life में when you want to grow, college is the best time where you can actually fail, you can learn, you can grow, you can mend the things which you were not doing properly पहले, but now you are doing those correctly. But that was all that I had to say for this video. I will meet you in the next one. Bye.